So the class, in previous session we have covered with the concept of social responsibility with the help of an integrated report of Infosys and the PowerPoint presentation, and I have given you many more example over the social responsibility. Why social responsibility is important for a business, why not the profitability is the sole objective of a business. तो अब इस पर्टिकुलर सेशन में वी विल बी कवरिंग द जस्टिफिकेशन द आर्ग्यूमेंट फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक व्हाट पॉइंट्स यू विल थ्रो टू फेवर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्यों बोलना चाहेंगे, आपको क्यों लगता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट पिलर टू सर्वाइव अ बिजनेस for the existence and the growth of the business. So here we have first point, that is justification for the existence and growth. जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। वाई बिजनेस क्या सोलली चल सकता है प्रॉफिट पे? उसके पास स्टेक होल्डर्स भी तो होने चाहिए। वट एवर द बिजनेस प्रोड्यूसेस इट विल बी कंज्यूम्ड समवेयर, एंड who will consume it? Either the people, either the another animals, plants. We have the community, we have the society. So, to understand this in a better way, come to our friend, that is PowerPoint presentation. So, in the very first lecture, what we are saying that business is beyond the profit. Business is beyond the profit. So, what is beyond the profit? Beyond the profit is you are not just focused on the financial growth of the business, but you are focused on the long-term survival of it. अब लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए यू हैव टू शेक हैंड विद द कम्युनिटी, and community is not only the owner, not only the investor, but community is the customer also, community is the employees also, community is the supplier of the business also. So why business exists? Because business is doing the things to fulfill the human needs. It is mandatory that a business should resolve the prevailing प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। सपोज अगर आपको अपने यहाँ लोकल एरिया में फ्रेश फूड चाहिए, बट यू कांट गो टू एग्रीकल्चर फार्म, आप एग्रीकल्चर फार्म में नहीं जा पाओगे, तो एग्रीकल्चर फार्म को बिजनेस आपके घर तक लेके आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दैट इज द नरिशिंग लाइफ। उसके बाद building the community. There are many infrastructure business also where they give you the housing facility, where they build the house for you, and then not only that, they give you the food, they give you the home, but they also ensure that you are healthy. So we have the pharmaceutical sector also. सो वी हैव द कोविड टू। तो कोविड में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अरेंजमेंट्स किए गए थे फॉर द वेलबींग ऑफ अ ह्यूमन। देन उसके बाद कनेक्टिंग द वर्ल्ड। अब आपको पता है कि मोदी जी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर काफी फोकस करते हैं, तो एक बिजनेस ही एक ऐसी चीज है जो कि हमको इंटरनेशनली भी मदद करेगा रीच आउट करने में। तो बिजनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जरूरी नहीं है। बिजनेस इज समथिंग दैट कनेक्ट्स आवरसेल्फ विद द कम्युनिटी इन विच वी आर वर्किंग, and in fact we are working for the society. Profit is the primary goal of our business, but for the short term. But if we want to live the long lasting life and having the long lasting impact on the society, then we have to follow the corporate social responsibility. Then इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है यहाँ पे? द रिवार्ड फॉर द वैल्यू क्रिएशन। यहाँ पे क्या है? रिवॉर्ड फॉर द वैल्यू क्रिएशन। लाइक आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ की आपको फ्रेश फूड नहीं मिलता है, एंड यू वांट, आपको वहाँ सिर्फ और सिर्फ पैक्ड फूड मिलता है, एंड यू वांट कि आपको फ्रेश जूस मिले, फ्रेश वेजिटेबल्स मिले, फ्रेश फ्रूट्स मिले। So sorry for the interruption, guys, because there was someone, my bro, who is making me laugh in between the class. So let's start with our discussion. We were there.
कि जो बिजनेस है उसमें अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करते हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो, तो वहाँ आपके लिए रिवॉर्ड क्या है, वहाँ आपका मेन प्रॉफिट क्या है। तो वी वर सेइंग कि आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ की आपको पैक्ड फूड मिलता है, बट यू वांट द फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूस, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड, राइट। तो यहाँ पे अगर आप एक फार्म गार्डन को एक सोसाइटी में ही लेके आ जाओगे इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो कितना अच्छा होगा। As you can see here also, कि consider your locality grocery shop. They earn profit because they serve the community by offering fresh product, fair price, and the friendly services. Long term value creation जब आप करके दोगे तो it has the higher chance that your business will survive more. Then trust and growth. एक बिजनेस किस वजह से चलता है, यू शुड हैव दैट रेपुटेशन कि माउथ ऑफ वर्ड पे चले आपका बिजनेस। माउथ ऑफ वर्ड इन द सेंस कि आपने बोल दिया बस अब तो यही लेना है। वहां पे हम क्वालिटी देखते हैं, उस बिजनेस की रेपुटेशन देखते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को देखते हैं। एंड एक तरफ शॉर्ट साइटेड गेन, मतलब मान लो अगर किसी बिजनेस का प्रॉफिट कमाना ही सबसे मेन मकसद है, तो वो एक्सपायर्ड गुड्स को भी आपको दे देगा विदाउट हैविंग कंसर्न दैट उसका कस्टमर की हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है। एंड उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा तो आपके बिजनेस पे भी इनडायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ने वाला है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर कस्टमर विल बॉयकॉट योर प्रोडक्ट। एंड सस्टेनेबल प्रोस्पेरिटी में हम क्या देखने वाले हैं कि आप माउथ ऑफ वर्ड्स पे चल रहे हो, बिकॉज द कम्युनिटी इज दैट, आपने कम्युनिटी के बीच में आपकी इतनी ऐसी इमेज बनाई है ना कि उस इमेज के चलते आपका प्रोडक्ट बिकता है बहुत ज्यादा। ठीक है। देन उसके बाद इतना ही था अपना कॉन्सेप्ट यहाँ। तो अब इसी चीज को हम पढ़ेंगे फ्रॉम आर बुक। मेनली जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस किस लिए बोला है कि आप जो है बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे। आपका बिजनेस खड़ा ही इस वजह से है क्योंकि आप कस्टमर की प्रॉब्लम को रेजोल्व कर रहे हो, आप उनको सोल्यूशन दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एंड आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो सरवाइव करने का है। स्टार्टिंग में प्रॉफिट इंक्रीज होगा, फिर कभी वो मैच्योरिटी पे आएगा, बट उसको स्टैग्नेंट भी होना पड़ेगा कभी ना कभी। तो वहां पे आप अपनी बिजनेस को कैसे सरवाइव करने वाले हो, वैल्यू क्रिएशन करके। योर प्रॉफिट शुड नॉट बी अ सोल मोटिव। Business exists for providing goods and services to satisfy human needs. Though profit motive is important justification for undertaking the business activity, आप जितनी भी business activities करने वाले हो उसमें आपको profit चाहिएगा, because आप जो product and services बना रहे हो उससे पैसा कमाओगे तभी तो आगे दोबारा से वही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद इम्प्रूवमेंट विद न्यू फीचर्स आप दे पाओगे अपने कस्टमर को। इट शुड बी लुक्ड अपॉन एज एन आउटकम ऑफ द सर्विस टू द पीपल। अगर आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच रहे हो, आफ्टर सेल्स सर्विसेज अपने कस्टमर को दे रहे हो, एक्सपायर्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, कोई हायर प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हो उस चीज के लिए, तो वो पर्सन बार बार आपके पास आएगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन बिजनेस कि आप पहला ऑर्डर भले ही कम प्राइस पे बेच दो, बट एटलीस्ट यू शुड रिटेन दैट कस्टमर। आपको उस कस्टमर को क्या करना है, रिटेन करना है। रिटेन करने के लिए स्टार्टिंग में आपको लॉस खाना पड़ता है इन द बिजनेस। इफ यू थिंक कि दैट पर्टिकुलर कस्टमर विल कनेक्ट विद अस फॉर द लॉन्ग टर्म, देन यू are happy to have the loss on the first order. In fact, the prosperity and growth of the business is possible only through the continuous services to the society. Thus, assumption of social responsibility by business provides justification for its existence and the growth. If you are working for a society, if you are providing good quality goods at reasonable price and solving the problem of your customer, your employees, your stakeholders, then it will be a good thing, it will be a good indicator that your business will survive for the long. तो यहाँ हमने पहला जस्टिफिकेशन देखा, जस्टिफिकेशन फॉर पहला आर्ग्यूमेंट देखा, जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। इसने यही बोला है मेन कि जो आपका बिजनेस है वो आउटकम है किसका, बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द पीपल।
आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हो, प्राइस चार्ज कर रहे हो, तभी आपका बिजनेस चल रहा है, कस्टमर आपके पास बार बार आ रहे हैं। देन आप उसको कॉन्टिन्यूस सर्विसेज भी दे रहे हो सोसाइटी को, तो वहां पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स है। देन इट इज अ क्वाइट गुड assumption that social responsibility is the justification for existence and growth of a business। तो यहाँ कीवर्ड तो मैंने पहले ही तुम्हें रेड इंक में बोल्ड करके दे दी है, तो यहाँ तुम अपने आप भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं प्रीवियस सेशन में भी लिखवाती थी, राइट। जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हो, यहाँ पे आप कीवर्ड्स लिखोगे अपने आप से, ठीक है। सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी कवरिंग दी long term interest of the firm।